series. Previous session, we have started with the sources of borrowed capital, wherein we have seen the first source, that is debenture. We have also seen the features of debentures. Now, with an assumption that you all are clear with what is a debenture, what are the basic terms which are involved in issuing of debenture, what is the terminology which we will be using while discussing about debentures, and the features of debentures. अब जैसे क्लास हमने शेयर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर देखा, ये तो बेसिक प्रोडक्ट हुआ, राइट? देन वी हैव सीन कि प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया जाता है, फीचर्स जो बेसिक होते हैं शेयर्स के उनको और कस्टमाइज किया गया, राइट? जैसे जैसे शेयर्स इशू होते हैं मार्केट में, वैसे वैसे कंपनीज एक्ट एंड सेबी फेल्ट दैट सर्टेन थिंग्स कैन बी अमेंडेड, सर्टेन थिंग्स कैन बी ब्रॉट इनटू the features for the betterment of the companies and the investors. So that means basic product के अलग अलग types बनाए गए. अब जैसे टीवी होता है, so basic टीवी के types हैं normal color टीवी, black and white टीवी, LCD टीवी, आजकल wall TVs आ गए हैं. So debentures, हमने basic debenture कल पढ़ा. Now in today's class we'll be discussing about what are the various types of debentures, right? अब debentures के जो types हैं वो कुछ types preference shares से मेल खाते हैं या सेम है. So let's see the types of debentures. Okay, so as you all can see on the board, I have written the types of debentures. This diagram is somewhat similar to the diagram we have drawn for the types of preference shares. I hope you can relate the diagram. अब जैसे preference shares में 4 main categories थी, हर category में 2 subtypes है. Similarly, debentures के types में भी you have 4 main categories. Each category has 2 subtypes. That means there are total 8 types of debentures, right? Out of the 8 types of debentures, 2 types ऐसे हैं जो preference shares के नाम से मैच करते हैं. Which are they? एक है convertible, non-convertible और दूसरा है redeemable, irredeemable. Why am I telling this you? Reason when you go ahead, जब आपका काफी सारा पोर्शन होता है, काफी सारी चीजें आपको समझ जाती है, एंड व्हेन यू लुक बिहाइंड, जब आप पिछले चैप्टर्स पर नजर मारते हो, सो यू कम टू नो दैट आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू स्टडी और व्हेन वी स्टडी, वी शुड ट्राई टू रिलेट द कॉमन थिंग्स एंड द डिफरेंट थिंग्स सो दैट इट बिकम्स easy to remember or to recall the things, right? अब जैसे preference shares में 8 types थे, तो मुझे पता है debentures में भी 8 types हैं. preference shares में और debentures के 2 ऐसे types हैं जिनके नाम सेम हैं, तो पहले हम वो कवर करते हैं. So एक है convertible, non-convertible debentures. Now class, when we saw preference shares, we have seen that preference shares अगर convertible है तो they can be converted into equity shares, right? We also saw that these equity shares will never get converted into preference shares. That means the conversion is always downwards, right? From a secured investment to a less secured investment, right? Now, if I add on debentures to this hierarchy, debenture will be on top of preference share. Why? Debentures are more secured, preference shares उससे थोड़े कम secured हैं, और equity shares
सबसे कम सिक्योर्ड है, राइट। सो अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे हैं, आई रिपीट, इफ यू हैव परचेज्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ इशू, you will be told by the company that after the expiry of so and so period, after the expiry of the mentioned period, your debentures will get converted into equity shares, correct। डिबेंचर से जो नेक्स्ट है वो प्रेफरेंस शेयर है, बट वो प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं होते, वो सीधा जो बेस का इन्वेस्टमेंट है सबसे नीचे उसमें कन्वर्ट होते हैं। क्लियर है क्लास? सो हाउ डू आई डिफाइन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स व्हेन आफ्टर अ सर्टेन specific period of time. When is this mentioned? At the time of issue itself. इशू के टाइम ही कंपनी बता देती है कि भैया अगर 2010 में हम आपसे पैसा ले रहे हैं तो 2020 तक, एग्जाम्पल till 2020 you will stay as a debenture holder. When you are a debenture holder, what rights you will have? You will have a right to receive interest payment. Number one, आपको interest मिलेगा, but will you get voting rights? No. Since you are a creditor, you will not get voting rights. Done. After expiry of 10 years, that is 2020, your debenture will get converted into करेक्ट इक्विटी शेयर्स। कब तक? अब ये इक्विटी शेयर्स में कब तक रहेगा? तो भाई हम सबको पता है कि इक्विटी शेयर्स की कोई मैच्योरिटी नहीं होती। इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी वापस कब करती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, राइट। सो 10 इयर्स के बाद वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो अब उसके राइट्स कौन से हैं? उसे इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नो। शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है हम उसको कहते हैं डिविडेंड, राइट। शेयर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट जो रिटर्न मिलता है, व्हाट डू वी कॉल इट एज? डिविडेंड। यहाँ पर दिस इज, व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट। हाउ इज इट? फिक्स्ड। बट डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज फ्लक्चुएटिंग। प्लस यहां वोटिंग राइट्स नहीं थे, कन्वर्जन के बाद दे विल गेट वोटिंग राइट्स। सो एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू कीप हिज लेग्स ऑन बोथ द बोट, जो दोनों बोट में सेल करना चाहता है, जो दोनों नावों पर पैर रखना चाहता है, जो ये भी चाहता है कि एक तरफ इनकम मिल जाए, आमदन आ जाए, जब पेट भर गया अब मैं वोटिंग राइट लेकर ओनर का मजा भी चख लूं, ऐसे इन्वेस्टर्स डिबेंचर्स जो कि कन्वर्टेबल हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट आर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? द कॉमन वन व्हिच विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो इनके साथ क्या होगा भैया? जो हमने देखा, मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिलेगा, राइट। अब कन्वर्जन जो होता है डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, उसके लिए बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स जब हम चैप्टर नंबर 5 डिबेंचर्स पढ़ेंगे, दैट टाइम वी विल सी कि कन्वर्जन पूरा का पूरा कन्वर्जन होता है जिसको हम कहते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, या कुछ कन्वर्ट होगा पैसा, कुछ वापस मिलेगा जिसको हम कहते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। सो विल सी दिस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 5। नाउ दिस इज क्लियर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल, क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर में
irredeemable पढ़ा है। In preference shares we have seen redeemable means redeem करना. The word redeem means जैसे हम कहते हैं हमारा एक पास एक कूपन है, I have a coupon of lifestyle which I am going to redeem it, I am going to encash it, right? Redeemable debentures means these debentures, a person who is purchasing these debentures can be redeemed within a specific period of time. जो टाइम कंपनी आपको इशू के टाइम बताती है, आप वो टाइम पे डिबेंचर्स का पैसा एनकैश कर सकते हो. दैट मीन्स योर मनी, योर प्रिंसिपल अमाउंट विल बी रिडीम्ड बैक टू यू, विल बी गिवन बैक टू यू एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. दैट मीन्स बिफोर लिक्विडेशन, कंपनी के लिक्विडेशन के पहले, जब कंपनी गोइंग कंसर्न है, रिमेंबर आई एम यूजिंग द वर्ड गोइंग कंसर्न, जब कंपनी गोइंग कंसर्न है, जब कंपनी जिंदा है, जिंदा के पीरियड में ही आपको आपका पैसा वापस मिलेगा. कब मिलेगा? जब कंपनी ने आपको इशू के टाइम मैच्योरिटी डेट बताया, 10 years whatever, right? अब irredeemable debentures है means the opposite of redeemable. Irredeemable का मतलब है if you give money to company in the form of debentures, that money will not be redeemed during the lifetime. वो पैसा करेक्ट गोइंग कंसर्न, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा. आपको पैसा कब मिलेगा? जब कंपनी लिक्विडेट होगी या जब कंपनी वाइंड अप होगी. सो irredeemable debentures are generally not paid during the lifetime of the company. Number one. Number two, they are payable only at the time of winding up, or if any contingency or any if there is any breach of condition, यानी कोई आपने कंडीशन रखा था या कंपनीज रूल या कंपनीज एक्ट और सेबी ने कंपनीज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, राइट? तो अगर वो रिस्ट्रिक्शंस को कंपनीज डिसओबे करती है, डिसफॉलो करती है, तो SEBI can tell the companies to return the money back to the debentures. So ऐसे टाइम पे ही कंपनी आपको पैसा लिक्विडेशन के पहले देगी. अदरवाइज इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन irredeemable debentures, you should know that your money will not be given to you before liquidation. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम जो मेच्योरिटी की बात करते हैं, so irredeemable debentures are also called as perpetual debentures. Perpetual means never ending, अमर, जिसको हम कहते हैं कि जब तक कंपनी जिंदा है तब तक आपका पैसा कंपनी यूज करती रहेगी और आपको उसका रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट देती रहेगी. बट प्रिंसिपल कंपनी जिंदा जब तक है, गोइंग कंसर्न जब तक है, तब तक वापस नहीं मिलेगा. जनरली irredeemable debentures की जो डिमांड है वो थोड़ी कम होती है. रीजन पीपल टेक इट मोर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. पीपल फील कि यहाँ थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, राइट? अब redeemable debentures we have just now seen, they can be redeemed at a particular period of time. जो भी मैच्योरिटी आपको प्रॉमिस की है उसके बाद आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिलेगा, या तो लमसम में मिलता है या तो इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, which is already disclosed by the company to the debenture holder. Very important thing is that as per Companies Act 2013, companies have to issue redeemable debentures with maturity not more than 10 years. I am writing Companies Act 2013 के हिसाब से
नॉर्मल कंपनीज को डिबेंचर्स इशू करने हैं तो उसका मैच्योरिटी 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, यहां पर मैच्योरिटी 10 साल से ज्यादा बढ़ सकता है, बट इवन नॉट मोर देन 30 इयर्स। यानी बाय डिफॉल्ट आपको रिडीमेबल डिबेंचर्स अगर इशू करने हैं, सो बाय डिफॉल्ट आपको 10 साल के अंदर के डिबेंचर्स की ही मैच्योरिटी रखनी है, 9 इयर्स, 10 इयर्स, 8 इयर्स। बट इफ यू फील कि अगर आप अब देखो, हम डिबेंचर्स में पैसा लेते हैं तो क्यों ले रहे हैं? हम कोई पर्पस से ले रहे हैं, कंपनी का कोई पर्पस होगा कि भैया बिल्डिंग खड़ी करनी है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है। बट 10 साल में अगर आपको पैसा वापस करना है तो आपका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास पैसा वापस करने के लिए 10 साल के बाद पैसे का सोर्स होना चाहिए। सो यू फील दैट द प्रोजेक्ट इज सो बिग, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन होते हैं, टोल रोड कंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसमें दुनिया भर का पैसा इन्वॉल्व है और बहुत टाइम लगता है, राइट? सो ऐसी कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, अगर इनको लगता है कि भैया हम 10 साल का डिबेंचर अगर इशू करते हैं तो 10 साल के बाद हमारे पास पैसा आने का कोई सोर्स नहीं है, तो हमें थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ा कर दो। दैट मीन्स let us use the money of the public for more than 10 years. So ऐसी कंपनीज एक्सेप्शनल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट के परमिशन लेने होते हैं, सेबी कंपनीज एक्ट का परमिशन लेना होगा। ऐसी कंपनीज डिबेंचर 10 साल से ज्यादा के लिए इशू कर सकती है, बट अंडर नो सर्कमस्टेंस दे कैन इशू अ डिबेंचर विथ मैच्योरिटी मोर देन 30 इयर्स। यानी 10 साल से ज्यादा 15, 20, 25 कर लो, 28 कर लो, 29 कर लो, बट 30 साल के ऊपर ये बढ़ नहीं सकते। क्लियर है क्लास सभी को? रिडीमेबल which can be redeemed during the lifetime at specific period which is informed at the time of issue. Done. 10 years. In some cases like infrastructure companies, they can exceed till 30 years. Irredeemable, which cannot be redeemed during lifetime, it will be redeemed only at the time of liquidation. What is the other name to such debentures? Perpetual debentures, right? अब हमारा कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल क्लियर हो गया है क्लास, रिडीमेबल इररिडीमेबल क्लियर हो गया है। Now let's move on to the type secured and unsecured debentures. Now class, when I was explaining features in my previous class, जब हमने वीडियो में फीचर्स पढ़ा तो मैंने बताया था कि डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड और कैनॉट बी सिक्योर्ड। ये कंपनी के ऊपर है कि वो किस तरीके की डिबेंचर्स को इशू कर रही है, और ये इन्वेस्टर के ऊपर है कि वो किस तरीके के डिबेंचर को खरीद रहा है, राइट? सो व्हेन आई से सिक्योर्ड, what do I actually mean? Secured का मतलब होता है कि if the company fails to keep its promise, अगर कंपनी अपनी प्रॉमिस रखने को फेल करती है, क्या प्रॉमिस रखा है कंपनी ने कि हम टाइम पर इंटरेस्ट देंगे और मैच्योरिटी आने पर प्रिंसिपल वापस करेंगे। These are the two promises which are done by the company, right? Now, if the company fails to keep any of the two promises, interest नहीं दे रही कंपनी, प्रिंसिपल मैच्योरिटी आ चुकी है बट प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है, तो मैंने बताया था आप किसके पास जाकर रोएंगे? You will go to a debenture trustee and you will tell the grievance. Debenture trustee will take an action with अगेंस्ट द कंपनी। अब ये एक्शन लेने के लिए वो हेल्प लेगा लिक्विडेटर्स की, कोर्ट की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, जो भी वो हेल्प लेगा वो अलग है। बट हेल्प लेने के बाद होता क्या है? होता ये है कि
अगर आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट्स टाइम पर नहीं मिलते हैं, जो कि इन्वेस्टर का हक है, राइट, इट इज द राइट ऑफ द इन्वेस्टर. सो इफ योर डिबेंचर इज सिक्योर्ड, दैट मीन्स आपके डिबेंचर के अगेंस्ट, इफ आई हैव टेकन मनी फ्रॉम समवन, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम यू, आपसे मैंने 10,000 रुपीज लिए. Now you say कि what guarantee that you will return my money on time? So I will say okay, काम कर, तब तक ये वॉच अपने पास गिरवी रख. ये वॉच 10,000 की है, तो जितना पैसा मैं तुझसे ले रही हूँ उतने अमाउंट की कोई चीज आई एम कीपिंग एज अ कोलैटरल, गिरवी रखना एज अ सिक्योरिटी, so that in case I am not able to repay you your 10,000 rupees, you can sell this watch, you can recover the amount. तो आपका और मेरा टेंशन खत्म. Similarly, जब कंपनीज पब्लिक से पैसा लेती है in the form of debentures, those debentures can be secured. That means उसके against कंपनी collateral issue कर सकती है और अनसिक्योर्ड इशू नहीं भी कर सकती है. ठीक है, सिक्योरिटी इशू करना यानी कोलैटरल इशू करना मींस आपके असेट्स के अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी दी डिबेंचर ट्रस्टी को. किसको दी? डिबेंचर ट्रस्टी को, कि अगर मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाती हूं तो तुम मेरे असेट्स को बेचो और डिबेंचर होल्डर्स के पैसे उनको रिकवर करवा दो. दैट मीन्स डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड, दे आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द assets of the company. That means the debenture holders have the right to charge on the assets. Charge करना है यानी धावा बोलना. ठीक है, अब ये धावा मैं नहीं बोलती हूँ, मैं डिबेंचर ट्रस्टी को बोलती हूँ कि धावा बोलो, राइट. सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर secured against the assets of the company. In case of any default, they can charge over the assets of the company and can recover their money. That means कहीं ना कहीं back of the mind एक शांति होती है इन्वेस्टर्स को कि अगर कंपनी भागती है या कंपनी धोखा देती है तो ठीक है यार, हमारे सुनने वाला कोई है और वो कुछ ना कुछ तो करेगा, असेट्स बेचेगा, पूरा पैसा में कुछ तो रिकवर कर देगा. डन. अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. अगेन द रूल इज कनेक्टेड टू द मैच्योरिटी. जो हमने यहाँ पढ़ा कि अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहे हैं, सो योर मैच्योरिटी, द कंपनी शुड नॉट इशू अ डिबेंचर हुज मैच्योरिटी एक्सीड्स 10 years. यानी आपको डिबेंचर 10 साल या 10 साल के अंदर का ही इशू करना है. दैट मीन्स इन 10 years यू हैव टू अरेंज टू गिव द मनी बैक टू द इन्वेस्टर्स, टू द डिबेंचर होल्डर्स. डन. बट यहां भी एक्सेप्शन है, जैसे यहां था इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन बिग प्रोजेक्ट्स विच हैव टू टेक प्रायर परमिशन. बिना परमिशन के नहीं चलता काम. सो ऐसी कंपनीज अपने डिबेंचर्स का मैच्योरिटी 10 साल से ज्यादा रख सकती है, बट इनको भी 30 साल से ज्यादा बढ़ने की परमिशन नहीं है. राइट. सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स maturity should be 10 years. In case of infrastructure companies only, the maturity can exceed 30 years, not more than that. Now, unsecured debenture. As the name says, unsecured, these debentures are not secured against
any assets of the company. That means if the company does any sort of default, अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है आपके साथ, तो इन्वेस्टर के पास कोई रास्ता नहीं है अपना पैसा रिकवर करने का, राइट? इसीलिए ऐसे डिबेंचर्स को नेकेड डिबेंचर्स भी बोला गया है, बिकॉज देयर इज नो प्रोटेक्शन कवर इन्वॉल्व टू सच डिबेंचर्स। एंड ये तो एक्चुअली धोखा है ना? हम कहते हैं कि भैया डिबेंचर्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेबी आपका ध्यान रखेगा, सेबी आपका प्रोटेक्ट करेगा, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। तो सेबी ने कहा बात तो सही है, तो सेबी ने क्या किया, ऐसे डिबेंचर्स को बैन कर दिया है। दैट मीन्स नाउ द कंपनीज कैन नॉट इशू और द कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। डन? So we are done with secured, unsecured. We are done with convertible, non-convertible. We are done with redeemable and irredeemable. Let's move on to the last type of debentures, that is registered and bearer. Registered and bearer. Class, नाम में ही आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा। Registered, रजिस्टर हुआ है, ये चीज रजिस्टर हुई है, ये चीज कहीं पर नोट डाउन हुई है। जैसे कि जब कंपनीज शेयर्स इशू करती है, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, राइट? इस सर्टिफिकेट पे उस बंदे का नाम होता है, द नेम ऑफ द होल्डर, कितने शेयर्स उसने लिए वगैरह वगैरह सब, और इस सर्टिफिकेट को एक नंबर होता है, मान लो सर्टिफिकेट नंबर 1। डन? अब कंपनी जब सर्टिफिकेट इशू करती है तो कंपनी अपने पास में भी कुछ रिकॉर्ड रखती है। वी शुड कीप, राइट? वट एवर वी आर इशूइंग वी शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर इशूइंग यू एनी transfer certificate, we are issuing you any bona fide certificate, the college always keeps a record of it, that certificate number so and so is being issued to student name this, तो certificate number this is issued to student name X। ऐसे ही जब कंपनी शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करती है तो कंपनी अपने पास एक रजिस्टर बनाती है। क्या बनाती है? रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं शेयर्स के केस में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या कहते हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब इसमें होता क्या है, ये जो शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 है, तो शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 ये किसको बिलोंग करता है? मान लो मिस्टर एक्स को, उसका एड्रेस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, राइट? कितने शेयर्स उसको दिए हैं, मान लो 100 शेयर्स दिए हैं, कौन से नंबर से कौन से नंबर, यानी डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखा होगा अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है तो, ठीक है? किस फेस वैल्यू पर शेयर्स दिए हैं, मान लो 10 रुपीज, किस टाइप के शेयर्स हैं, मान लो इक्विटी शेयर्स। दैट मीन्स मेरे पास कहीं ना कहीं ये एक रिकॉर्ड बनता है कि शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 इसको दिया है। अगर कहीं फ्यूचर में मुझे कोई पूछता है कि भैया शेयर सर्टिफिकेट नंबर 210 किसको दिया था, तो आई कैन टेक आउट माय शेयर का रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एंड आई कैन जस्ट फाइंड आउट नंबर 201 एंड आई कैन टेक आउट द डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। ठीक है? तो यहां हुआ क्या, हमने इस शेयर होल्डर के डिटेल्स को नोट डाउन किया। क्या किया? नोट डाउन किया, रजिस्टर किया, और उसी डिटेल्स को उसके शेयर सर्टिफिकेट पर भी लिख कर दिया। इस सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर है और इस बंदे का नाम है, मान लो परवीन, यहां भी उसका नाम है मान लो परवीन,
राइट। अब अगर ये सर्टिफिकेट परवीन से कहीं घूम जाता है, इफ द सर्टिफिकेट इज लॉस्ट somewhere, I misplace it or I meet with an accident where the documents, I just lose the documents. ये सर्टिफिकेट अगर किसी और के हाथ में लगता है तो ये सर्टिफिकेट उसके काम का होगा क्या? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये सर्टिफिकेट मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। माय नेम इज प्रिंटेड, इज stamped, is entered on the certificate as well as on the register of members। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही सेम होता है डिबेंचर्स में, ऐसे ही सेम होता है डिबेंचर्स में। आपको यहाँ शेयर सर्टिफिकेट मिला था तो डिबेंचर में क्या मिलेगा क्लास आपको? डिबेंचर सर्टिफिकेट, राइट? यू गेट एन एविडेंस, यू गेट एन एक्नॉलेजमेंट, राइट, विच आई हैव टोल्ड यू। सो आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिला, राइट? सिमिलरली जैसे कंपनी ने मेंबर्स का रजिस्टर बनाया, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का भी रजिस्टर बनाती है, जिसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम पंच था, यहां पर भी डिबेंचर सर्टिफिकेट पर नाम पंच होगा, लिखा होगा। सेम उसके डिटेल रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में कंपनी मेंटेन करेगी। कैसे? डिबेंचर सर्टिफिकेट नंबर 1 कौन होल्ड करता है? परवीन। कितने पैसे लिए हैं उससे? 5 लाख रुपीस। कितने साल के लिए हैं? 10 इयर्स के लिए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है? 10%, राइट? सो कहने का मतलब है अगर ये डिबेंचर सर्टिफिकेट कहीं घूम जाता है तो जिसके हाथ में लगेगा ये उसके काम का नहीं है। दैट मीन्स द पर्सन हु विल फाइंड द सर्टिफिकेट, he will not misuse this certificate. Why? Because the name of the holder, the name of the debenture holder is already registered on the debenture certificate and is already registered with the company on the register of debentures. ठीक है? अब ये सर्टिफिकेट घूम गया तो भैया डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलने का कोई प्रोविजन है? तो आंसर है यस। द कंपनी कैन गिव यू और कंपनी विल गिव यू अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ओनली इफ यू वर अ रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। दैट मीन्स आप कंपनी के पास जाके बोलोगे कि मैं परवीन हूं, मुझे सर्टिफिकेट घूम गया, मुझे दूसरा सर्टिफिकेट दो, तो कंपनी आपके बोलने में विश्वास करेगी क्या? नो, कंपनी अपने रजिस्टर में चेक करेगी कि अरे हाँ सच में परवीन नाम के किसी बंदे या बंदी का डिबेंचर होल्डर है और उसको सर्टिफिकेट डुप्लीकेट देना है। ठीक है? अब दैट मीन्स घूम गया तो अगले के काम में नहीं आएगा, मैं डुप्लीकेट ले सकती हूं। अब अगर मुझे इस डिबेंचर को किसी और को ट्रांसफर करना है, मैं इसको अपने फ्रेंड को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि परवीन का नाम कट हो जाए और इसमें शीतल का नाम एंटर हो जाए। दैट मीन्स कैन आई ट्रांसफर माई डिबेंचर्स? तो आंसर इज यस, बट I cannot cut the name by myself. I cannot enter the name of Sheetal by myself because अगर यहाँ कट करती हूँ तो यहाँ कट कौन करेगा? कंपनी। So I have to go and approach the company. I have to do the formalities of transfer. That means registered debentures. What is a registered debenture class? इतने एग्जाम्पल से अब आपको समझ जाना चाहिए कि रजिस्टर्ड डिबेंचर वो है जिसपे डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड होता है, नोटेड होता है, राइट? सर्टिफिकेट पर भी नोटेड है,
रजिस्टर ऑफ डिबेंचर पे भी नोटेड होगा। अगर ऐसा सर्टिफिकेट घूमता है तो जिसको मिला उसको, हम कहते हैं ना हमें छपड़ गया, तो जिसको छपड़ेगा उसको कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज द नेम इज प्रिंटेड। ऐसा सर्टिफिकेट अगर मुझे किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना है तो आई हैव टू अप्रोच द कंपनी, आई हैव टू फॉलो द प्रोसीजर विच द कंपनी विल टेल मी। क्लियर? अब ये हो गया रजिस्टर्ड डिबेंचर। दूसरा डिबेंचर होता है बेरर। बेरर का मतलब होता है फिजिकल पोजेशन, जिसके हाथ में है वो उसका मालिक, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मेरे हाथ में 2000 का नोट किसी का छपड़ गया, मैं चल रही हूं ऐसे ही एंड मुझे किसी का 2000 का नोट मिलता है। वो 2000 का नोट जब मैं उठाती हूं तो क्या उस नोट पे किसी का नाम लिखा होता है क्या? नहीं। तो जिसके हाथ में वो 2000 का नोट है वही उसका मालिक है। He or she is the owner, the person who is bearing the physical ownership। अगर मेरे पास में ये है, ये सर्टिफिकेट है, इसमें किसी का नाम नहीं है, and if I am bearing it, I am holding it, I am the owner। So a bearer debenture में होता क्या है? बेरर डिबेंचर में डिबेंचर सर्टिफिकेट पर सारे डिटेल्स रहेंगे एक्सेप्ट डिबेंचर होल्डर के नाम के। कंपनी डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखती है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर ने वैसी डिमांड की है। डिबेंचर होल्डर चाहता है कि सर्टिफिकेट पर मेरा नाम ना हो, बाकी सब हो। बाकी सब यानी अमाउंट हो, मैच्योरिटी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, साइन हो, कंपनी सील हो, सब हो एक्सेप्ट माय नेम। सो नेम इज नॉट रिटन। अब जब नाम यहां नहीं लिखा है तो कंपनी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में भी नाम नहीं मेंशन करती है। अब ऐसे डिबेंचर्स तो थोड़े रिस्की है। रिस्की क्यों? अगर ये डिबेंचर मुझसे घूम जाता है तो जिस भी इंसान के हाथ में लगेगा वो उसका मालिक होगा। ही और शी विल बी द होल्डर ऑफ द डिबेंचर। वो कंपनी में जाकर पैसा क्लेम, इंटरेस्ट क्लेम कर सकती है, नो प्रॉब्लम। कई बार इनफैक्ट 99.99 टाइम्स पीपल इशू बेरर डिबेंचर्स डेलिबरेटली, जानबूझकर। क्यों? बिकॉज वो जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते। दे फील कि 2-3 साल के बाद इफ आई फील दैट Parveen has to transfer the debenture to Sheetal, she will just give the physical copy. She will say, okay, Sheetal, आज से ये debentures तुम्हारे। It's fine because she does not have to go to the company because उस पे जब परवीन का ही नाम नहीं था तो शीतल का नाम चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्लास? सो registered debentures and bearer debentures. Registered debenture means on which the name of the holder is recorded. I have explained to you. Bearer debenture means that no records are maintained by the company that who is the debenture holder, neither in the debenture certificate nor in the register of debentures. As I told, such debentures are very easy to transfer, but such debentures are risky too because यहाँ पर चोरी होने का, घूमने का और ये सब रिस्क इन्वॉल्व रहता है। कैसे डिविडेंड मिलते हैं ऐसे डिबेंचर्स को, ये सब चीजें हम धीरे धीरे जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे डिबेंचर्स के, दैट टाइम वी विल सी टू इट, राइट? सो क्लास, आई होप आई एम क्लियर विथ ऑल द 8 types of debentures. You have to really study well to understand them. Try to note down them and try to learn these things, right? So that's all for the day. Have a good day. Take care of yourselves. Bye.